Yeah, this example is with you. Is my screen visible to you, students? Yes, ma'am. This example is with you. If not, please draw it right now. Draw this tree. We will be doing FP growth. So I will make one table here. Now, everybody have this table with you? If you don't have, please draw it fast. So here we will write conditional pattern base. First of all, conditional pattern base is needed. So how to create this conditional pattern base from the items? First of all, we need to arrange your items in ascending order. Okay. The items in below table are arranged in ascending order of their frequencies. So what are the items? D, B, A, E, C. And they all are in, okay, we will do it. If they are descending order, we will make it ascending order. So first of all, we write C. After that, we will write E. After that, let me write in caps. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. C, Yes, E, ma'am. after that A, and we have B and D. B and D. So these are the items in ascending order. Now, we need to write conditional pattern base. So how to create a conditional pattern base is for each item, the conditional pattern base is computed with, which is a path labeled for all the paths which leads to any node for a given item in a frequent pattern tree. Okay, so first is your C. So you will find C, you can reach to C here, you can reach to C here, and you can reach to C here. So there will be a three pattern base, three conditional pattern base, which you will create for these three. Okay, so we will create it.
For the first C, how to reach C? You can reach to C from the root by D, then B, then A, then E. Okay, so here we will write D, B, comma A, comma E. And for this reason, the count is 1. Count is 1. Are you getting what I did here? मैं पाथ देख रही हूँ सी तक कैसे पहुंचूंगी. अगर मैं रूट से स्टार्ट करूँ तो आई विल गो टू डी, then B, then A, and then E. So once I have passed, so that's why the count for C is 1. So this count you need to reflect here. Now go for the second path. So for you need to reach to C from a second path. The path will be here B, A, E, and you will reach to C. B, A, E, and you will reach to C. So write down B, A, E. B, A, E, and you will reach to C. C का काउंट कितना है यहाँ पे? C का काउंट 1 है. This is another conditional pattern base. So we will go for another conditional pattern base क्योंकि 3 बार C आपको appearance मिलेगा. You can reach to C with the help of B. After root, with the help of B, you will reach to C. So in path only B occurs, and the count of C is 1. So here the count of C will be 1. So you will write only B colon 1. Colon complete. Sorry, brackets complete. Got this? This is very important. ये समझा क्या? सिर्फ इतना बता, उसके बाद ही आगे जा सकते हैं. मैम रिपीट कर रहे हैं एक बार. देखो, हमको आइटम है हमारा सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे आइटम्स कैसे अरेंज करें? असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे हमने क्या किया है? फ्रीक्वेंसी यानी काउंट के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने ये बनाया. हमको ये चीज क्या करनी है? अभी असेंडिंग ऑर्डर में बनानी है. असेंडिंग ऑर्डर बोलोगे तो सी पहले आएगा, ई, ए, बी एंड डी. फ्रीक्वेंट आइटम ही चाहिए, इसलिए हम यही टेबल रेफर करेंगे जो हमने हेडर टेबल बनाया है. ओके, सो हम सीक्वेंस में पहले सी, ई, ए, बी, डी लिखा है. ओके, अभी हम क्या करेंगे? नाउ फॉर कंडीशनल पैटर्न बेस फॉर सी यू नीड टू राइट डाउन. अब कंडीशनल पैटर्न बेस इज कंप्यूटेड फ्रॉम द पाथ. Read this: path labeled of all the paths which lead to any node of the given item in the frequent pattern tree. Frequent pattern tree से हमको path labels find out करने हैं जिससे हमको कोई भी नोड तक पहुंच सके. तो यहाँ पे हम C को रीच करना चाहते हैं. Now you are drawing conditional pattern tree to C. तो C तक कैसे पहुंचेंगे? पाथ कौन सा रहेगा? रूट से स्टार्ट करें तो डी, बी, ए और ई. ठीक है, और इसका काउंट कितने बार आया है? 1. सी के सामने जो लिखा है वही रिफ्लेक्ट करना है. सी के सामने 1 लिखा है तो वी विल रिफ्लेक्ट 1. सो डी, बी, ए, ई. अब सी को रीच करना है. सी को कैसे रीच कर सकते हैं? सेकेंड पाथ है बी, ए, ई, और सी के बाद काउंट क्या लिखा है? 1. सो बी, ए, ई, 1. नाउ सी को और एक बार रीच कर सकते हैं हम थ्रू अ पाथ बी. सो बी और काउंट कितना लिखना है जो सी के सामने है? सो 1. ठीक है, सिमिलरली वी विल गो फॉर ई. वी विल गो फॉर ई. ठीक है, अब यहां पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे
ई तक पहुंचना है. सो ई हमारा यहाँ अपियर हुआ है, यहाँ अपियर हुआ है, यहाँ 3 बार अपियर हुआ है, तो 3 पाथ आएंगे. सो वी विल टेक फर्स्ट पाथ. ये ले लेते पहले, डी बी ए एंड ई. काउंट कितना लिखा है? काउंट कितना लिखा है यहाँ पे? 2. सो डी बी ए ई 2. So we will write D B A E colon 2. ये अभी समझ लो, बाद में ये चीज समझ में नहीं आएगी कैसे बनाया, क्या बनाया. अगर आपको टेक्निक समझ में आया तो इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ. अगर टेक्निक समझ में नहीं आई तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ. ये समझ में आया, ये पाथ हमने कैसे निकाला, ये पाथ हमने कैसे निकाला, ये समझ में आया. Anybody have any problem in finding Yes, this ma'am. path? Okay, so we will go for next path. So हमने D ये पाथ एक्सप्लोर किया, D B A E with count 2. Now go for this path D A, और E में रीच करने के लिए काउंट कितना आ रहा है? 1. So D A और 1. So write down the path D comma A colon 1. D A E. ठीक है, तो सेकंड पाथ हो गया. नाउ और एक पाथ हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. सो दैट पाथ इज हियर. वी कैन रीच टू ई फ्रॉम दिस पाथ. सो बी ए और काउंट कितना है? 1. सो बी ए और 1. सो वी विल राइट बी कॉमा ए कोलन 1. ये समझ में आया सेकंड कैसे एक्सप्लोर किया? मैम. यस मैम, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला लिखा है अपन ने डी बी ए ई, इसमें ई नहीं आएगा ना फिर? हाँ, यस करेक्ट, ई नहीं आएगा. जिसके लिए बना रहे वो नहीं आएगा, वो छोड़ के उसके पहले तक का पाथ पूरा आएगा. करेक्ट करेक्ट तृप्ति. व्हाट अबाउट अदर्स? आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है ये बनाने में? यस, आकाश, अक्षय, अमित, अमिताभ, अनिकेत, अनुभूति, प्रेक्षा, लकी, चारुश्री, कल्पना. ठीक है, आगे वाला बनाओ फिर. पहले आप लोग बनाओ, मैं ट्री रखती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ, नहीं तो इट विल बी टेकिंग मोर टाइम. सो वी विल डू साइमल्टेनियसली. सो डू इट, एंड इफ you are done you can tell me. For reaching A is here, A is here, A is here. तो 3 पाथ मिलेंगे. So D B and count is 3. Remember this, D B and count is 3. So we will write D comma B colon 3. We have one more path. So that path is D A is reaching, the count is 1. So we are starting with D only. So we will write D and 1. Go for the next path. Next path, if you visit A, it is from B, and the count of A is 1. So B and 1. Okay, as you go towards the higher means higher count,
आपको कंडीशनल पैटर्न बेस कम मिलते जाएंगे. सो गो फॉर बी नाउ. अगर हम बी के लिए बना रहे हैं, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो दो बनेंगे बी के. ठीक है, लेकिन बी रूट से डायरेक्ट रीच हो रहा है. बी रूट से डायरेक्ट रीच हो रहा है. Nothing is node in between, so nothing will come. So only one, it is coming from D and count is 4. एक ही बात है. पाथ दो है, लेकिन डायरेक्टली रूट से अगर देखा जाए तो पाथ में सिर्फ डी आ रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट रीच हो रहा है, तो एक ही आएगा. और डी के लिए कुछ भी नहीं आएगा. नथिंग विल कम फॉर डी. इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है का? बताओ. देन आई विल गो टू नेक्स्ट स्टेप. ये टेबल सबका बन गया. टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमको लिखने हैं टेबल में असेंडिंग ऑर्डर में. वी नीड टू राइट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज. सी की फ्रीक्वेंसी 3 है, ई की 4 है, लाइकवाइज, और डी की 6 है. So accordingly we will write in ascending order. Then we will find off conditional pattern. And these are nothing but the path labels. कौन से path labels in between आ रहे हैं जो जो हमको हेल्प करेंगे नोड तक पहुंचने के लिए. सो वो आएगा कंडीशनल पैटर्न बेस में. एंड इट इज ड्रॉन फ्रॉम द ट्री ओनली. नाउ नेक्स्ट स्टेप है कंडीशनल फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री बिल्ड करना. Set of element which is common in all the path in the conditional pattern base of that item and calculate its support count by summing the support count of all the paths in the conditional path base. ये table लगेगा हमको. So I will copy this table, paste here. I will add one more. आप उसके आगे ही लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैंने और एक बार लिखा है. आई नीड टू टीच यू इन स्टेप बाय स्टेप, दैट्स व्हाई. सो अभी हम मुझे बनाए कंडीशनल फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री. दिस आई नीड टू बिल्ड. अब यहाँ पे हमको लगेगा सपोर्ट काउंट. मिनिमम सपोर्ट काउंट कितना है फॉर दिस प्रॉब्लम? द मिनिमम सपोर्ट काउंट हियर इट इज रिटन एज 2.4. दिस इज नियरली इक्वल टू 3. ठीक है, इट इज 2.4 विच इज नियरली इक्वल टू 3. तो हमने सपोर्ट काउंट 3 लिया है. नाउ कैलकुलेट द सम. ये इनका सम करना है. इफ यू सी डी विल अपीयर ओनली वंस. ठीक है, यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे डी नहीं है. टॉकिंग अबाउट बी, बी इज हियर 1 काउंट, बी इज हियर 2 काउंट, बी इज हियर 3 काउंट. तो यहाँ पे आएगा बी कोलन 3. और सपोर्ट काउंट को वो टैली कर रहा है. सपोर्ट काउंट इज 3 और बी का भी 3 है, तो वो फ्रीक्वेंट है. तो कंडीशनल फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री में वो आएगा. गो फॉर ए का काउंट है 1, ए का काउंट है 1. सो इफ यू सम इट 1 + 1,
ए यहाँ पे है 1 टाइम, ए यहाँ पे है 1 टाइम। तो इफ यू काउंट इट 1 + 1 दैट विल बी 2। और जो हमारे फ्रीक्वेंट आइटम से सपोर्ट काउंट से फ्रीक्वेंट सपोर्ट काउंट से कम है, मिनिमम सपोर्ट काउंट से कम है, दैट्स व्हाई ओनली 1 विल कम। E, talking about E will appear out 2 times, here and here, and with a count 1 and 1 only। तो वो भी 2 ही होता है और 3 से छोटा है, इसलिए कंडीशनल फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री में एक ही चीज आएगी। गो फॉर दिस। यहाँ पे देखो D आया है 2 टाइम्स, D आया है 1 टाइम्स, 2 + 1 3, और यहाँ D नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे D:3। समझ में आ रहा है? ये 3 कैसे निकाला, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? No, ma'am. नो, समझ में नहीं आया? ओके, ये काउंट है। इज इट ओके विद द काउंट? Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे हम सबका काउंट करते हैं। डी कम्स 1, यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ये देखो, ये 3 अलग अलग सेट्स हैं। तीनों सेट्स में हमको देखना है कि डी कितने बार आया है। डी कम्स फॉर 1, हमको सम करना है, काउंट को सम करना है। सी, सम बाय समिंग द सपोर्ट काउंट्स ऑफ ऑल द पाथ्स, समिंग द सपोर्ट काउंट्स ऑफ ऑल द पार्ट्स। तो हमको पार्ट्स के सम करने हैं। सो डी का 1 टाइम आया हुआ है, सो डी कम्स फॉर 1। यहां लिखती हूँ ऊपर में, डी कितनी बार आया है? 1 बार आया है। ठीक है, डी कितने बार आया है? डी आया है 1। 3 बार। 1, बी यहाँ पे भी है 1, और यहाँ पे भी है, तो बी आया 3 टाइम्स। इफ यू टॉक अबाउट ए, ए कितने बार आया है? ए आया है 2 times. वंस, फिर से यहाँ पे ए आया है, ये भी आया है वंस, तो ये निकालो। फिर ई देखिए, ई भी आप अगर देखते हो तो ई भी कितने बार आया है? 2 टाइम्स आया है। अब इसको कंपेयर करो मिनिमम सपोर्ट काउंट के साथ, और मिनिमम सपोर्ट काउंट की वैल्यू क्या है? 3। अब मुझे बताओ, नॉन फ्रीक्वेंट आइटम तो आएंगी नहीं, 3 या 3 के ऊपर है वही आएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आइटम है, बी, सो दैट्स व्हाई बी इज इंक्लूडेड। यहाँ पे अगर सेकंड प्रॉब्लम में आप करते हो सम, तो डी की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी इज हियर, काउंट कितना है? 2। ठीक है, तो काउंट हो गया 2। फिर से बी आया है क्या? हाँ आया है, काउंट कितना है? 1। सो बी का काउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। 3. ठीक है, आगे जाते हैं तो ए भी अपीयर कर रहा है, ई नहीं है, ई को मैं हटा देती हूँ। ए कितने बार आया है? ए आया है 2 टाइम्स, काउंट देखते जाओ, उसका सम करना है। और ए आया है 1 टाइम, और फिर से ए आया है 1 टाइम, यानी ए की वैल्यू कितनी आई है? यस, 2 + 1 + 1 दैट इज 4। समझ में आ रहा है? बी की वैल्यू कितनी है? ये 2 देखो, 2 + 4. 1। डी के लिए देखो, डी के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट डी फॉर डॉग, 2 + 1 3 है। बी के लिए कितना है? 2 + 1 3 है। ए के लिए कितना आ रहा है? 2 + 1 + 1 दैट इज 4। दिस इज क्लियर? ये समझ में आया? Yes, ma'am. काउंट कैसे निकाले हैं? अनुभूति, अमित, अमिताभ, Yes, ma'am. अपेक्षा, प्रत्यंचा, प्रणाली, सूरज, आपको समझ में आया?
श्रीजा, या ठीक है। अब ये देख, कंपेयर करो मिनिमम सपोर्ट काउंट के साथ। इट्स वेरी सिंपल, कंपेयर करना है उसको। कंपेयर किया तो 3 या 3 के ऊपर चाहिए, सारे ऊपर है। सो आई विल राइट डी कॉमा बी कॉमा ए। ठीक है, ये मेरा बन गया कंडीशनल फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री फॉर ई। अभी जाएंगे ए के लिए। अभी ये बना सकेंगे आप? ट्राई करो और काउंट बताते जाओ मुझे। मैम, हाँ, बट एक अकाउंट 4 है ना? किसका काउंट? हाँ, ए का काउंट 4 है। एक अकाउंट 4, यस, यू आर राइट। तो 3 का 3 और यहाँ आएगा कॉम। हाँ, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। हाँ सर। A colon 4, sorry, thank you for correction. A का 4 आ रहा है। A is 1 here, A is 1 here, and A is 2 for A. Correct. A का काउंट 4 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट करो। D के लिए कितना आ रहा है? 3 प्लस 1 4। और B के लिए कितना है? 3 प्लस 1 4। सो यहाँ आएगा D कॉमा B कोलन 4। ठीक है, जैसे ही आप हायर हायर ऑर्डर के लिए जाएंगे, हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे, तो आपको सेम चीज मिलेगी क्योंकि वो फ्रीक्वेंट रहेगी। दिस इज हाउ यू विल बिल्ड कंडीशनल फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री। कंडीशनल फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री। ये समझ में आया यहां तक? यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको Yes, बताऊंगी फ्रीक्वेंट पैटर्न रूल्स कैसे बनाने हैं। कैन आई ऐड हियर ओनली? क्योंकि वो इजी जाएगा एक साथ, क्योंकि उनको कंपेयर करना पड़ता है। तो आई विल ऐड हियर ओनली। सो वी विल डू फ्रीक्वेंट पैटर्न रूल्स। उनको रूल्स बनाने। सी, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हमको एसोसिएशन रूल्स फाइंड आउट करने। हमने एसोसिएशन रूल्स अप्रायरी में भी फाइंड आउट किए थे। ठीक है, अप्रायरी का कैंडिडेट और एल जनरेट होने के बाद। सिमिलरली यहाँ पे एफपी ट्री जो है वो सिर्फ आपको फ्रीक्वेंट आइटम ट्री बनाता है, रूल्स नहीं बनाता। सो एफपी ग्रोथ इज हेल्प यू
in finding the rules. So हमको frequent pattern rules बनाने हैं. From the conditional frequent pattern tree, the frequent pattern rules are generated by pairing the items of the conditional frequent pattern tree set to the corresponding items as given in the table. तो हम लोग rules बनाएंगे. रूल्स मेरे बनेंगे यहाँ पे. पहला रूल बनेगा, सिंगल आइटम है बी, सो इट विल गिव यू ओनली वन कॉम्बिनेशन हियर. सिंगल आइटम बी है तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा. दैट कॉम्बिनेशन इज बी, सॉरी, बी कॉमा सी कोलन 3. बी कॉमा सी कोलन 3. ठीक है, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा. हमने क्या किया है, पेयरिंग किया है. ये आइटम सी के लिए कंडीशनल फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री बनाया, तो सी को उसके साथ कंबाइन किया. तो रूल में क्या है, जब भी हम बी और सी आइटम्स जो है वो खरीदेंगे तो वो फ्रीक्वेंट रहेंगे, और ये हो गई उनकी फ्रीक्वेंसी इन 100%. 10% 3 यानी मिनिमम सपोर्ट काउंट 3 है, सो दैट्स व्हाई हियर 3 इज देयर. अगर यहाँ पे हम बनाते हैं तो सी हियर, यहाँ पे कैसे बनेगा, ई. सो फर्स्ट आइटम क्या है, डी. डी के साथ ई का कॉम्बिनेशन, दैट विल बी 3. ये एक सेट बना. दूसरा सेट बनेगा डी के साथ बी के साथ ई, कोलन 3. तीसरा सेट बनेगा बी कॉमा बी कॉमा ई कोलन 3. ठीक है, ये मैंने बनाया फर्स्ट के लिए, इन तीनों के लिए. अब यहाँ पे A4 बचा हुआ है ना, एक, सो और एक सेट बनेगा. सेट क्या बनेगा, A कॉमा B कोलन 4. और एक बनेगा डी बी ए ई, डी ई ए ई, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 3 आएगी. इतने सेट बनेंगे. इफ यू गो अबाउट द नेक्स्ट, डी कॉमा बी, डी कॉमा ए
colon 4, again D, B, comma A, colon 4, और एक बनेगा जिसमें 3 हो रहेंगे, सो D, comma B, comma A, colon 4, कंप्लीट। और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तीनों का। यहाँ पे एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, B, comma B, colon 4। एंड दिस यू नीड टू फाइंड आउट। सो दीज आर रूल्स। जब भी आप बी खरीदते हो उसके साथ सी भी खरीदोगे और उसकी फ्रीक्वेंसी 3 रहेगी। So these are association rules. Means B item is associated with C item and its frequency is 3. Like this. So these are conditional rules. ये क्या है? Conditional rules है। ये होता है आपका एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम। ये बनाना है। ये सारी चीजें एक ही टेबल बनाया तो भी चलेगा। बुक में भी इफ यू रेफर बुक देयर विल बी ओनली सिंगल टेबल अवेलेबल। I have taken different problem other than your book problem. We will solve it also. वो भी solve। समझ में आया? Yes, students. कैसे बनाया समझ में आया? See, you need to take practice. You need to do practice once, twice, thrice. Then it will be easy. Nothing is there. Only you need to see the diagram or the combination and make the combinations. So you got it? Do you want one more problem to be solved? Can I take one more problem also? Yes, ma'am. So in next class, that is on Monday. Yes, ma'am. Monday we will take one more problem starting from FP tree. ठीक है, FP tree से लेके यहाँ तक। अगर मैं सैटरडे को कोई प्रॉब्लम बता आपको सेंड कर रही हूँ तो FP tree तक ड्रॉ करके रखना। वी विल टेक अदर पार्ट इन योर क्लास। ठीक है, और जिनको नहीं आता FP tree तक वो भी समझेंगे कि FP tree कैसे बनाना है। So thank you everyone.